Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Educational Corner. As you are already aware that we have completed lesson 1 from our Science NCERT book Curiosity of class 7th. Today we are going to start with chapter number 2, that is Exploring Substances Acidic, Basic and Neutral. So what does this mean? Exploring substances. Exploring means to find out. Substances means the material. So it means to find out the material or substances in this chapter, that whether they are acidic, basic or they are neutral. Okay. So either they are acid, base or they are neutral in nature. So we are going to explore substances. We are going to find out substances in this chapter, whether they are acid, basic, base or neutral. So lesson number 2 from our Science NCERT book Curiosity of class 7th, Exploring Substances Acidic, Basic and Neutral. On 28 February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. At the entry gate, siblings Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. So क्या हुआ, 28 फरवरी को स्कूल के अंदर एक साइंस फेयर था. किस लिए करा गया था वो फेयर? वो मिला इससे था ताकि वो साइंस नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट किया जा सके. तो एंट्री गेट पर ही अश्विन और कीर्ति जो कि सिबलिंग्स हैं, उनको एक वाइट शीट दी गई पेपर की और देवर क्यूरियस, देवर एक्साइटेड कि ये उनको वाइट शीट जो है वो क्यों दी गई है. okay? A few steps ahead there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. तो थोड़ा सा जब वो आगे गए तो वहाँ एक वॉलंटियर एक खड़े हुए थे और उन्होंने क्या किया, उस जो वाइट शीट है, वाइट शीट के ऊपर कुछ लिक्विड स्प्रे किया. द सिबलिंग्स ऑल्सो गॉट देयर वाइट शीट स्प्रे. तो उन्होंने भी अपनी वाइट शीट्स पे स्प्रे करवा लिया. To their surprise, the words "Welcome to the wonderful of science" appeared on the paper the moment the liquid was sprayed. Okay? तो जैसे ही वो स्प्रे करवाया उन्होंने, उनकी शीट पर लिखा आ गया "वेलकम टू द वर्ल्ड वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस". उनके पेपर पे एकदम से लिखा आ गया जैसे ही वो लिक्विड जो है वो उनकी शीट पे स्प्रे किया गया. They were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. So they were excited, both of the siblings, they wanted to know कि ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या reason. Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall. So there was one stall. तो वहाँ जाकर उनकी जो क्यूरियोसिटी थी इस बात को लेकर कि पेपर पर क्या स्प्रे किया जिससे कि वो लिखा हुआ आ गया, तो आधी तो एक स्टॉल पे जाकर जो है वो सॉल्व हो गई. स्टॉल का नाम था कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस. दे सॉ मैनी एक्टिविटीज शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंस. उस स्टॉल पे उन्होंने क्या देखा, ऐसी एक्टिविटीज देखी जिससे कि कलर चेंज हो जाता था अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स करने पे. दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर. तो वो और इन जो ये चेंजेस हुए थे इनको और आगे एक्सप्लोर करना चाहते थे, फाइंड आउट करना चाहते थे. लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर. सो वी आर गोइंग टू जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर. 2.1 Nature, our science laboratory. Litmus as an indicator. Activity 2.1, let us explore. Now here is an activity which we have to where we have to use litmus paper, and it is used as an indicator. So what is an indicator? Indicator is a thing which shows us something, or it tells us about something. Maybe it gives us particular sign. Okay, for example, when you are driving, your father is driving a car. At that time what happens, there is an indicator which shows us that is there plenty of petrol in the car or not. So indicator basically shows us something. Okay,
So here we are using a indicator, that is litmus. Litmus is a indicator which we are using. So it is a substance basically which changes color when we use certain materials with it. For example, whether it is acidic or basic in nature. So in basically in science, indicator is a substance which often changes its color. It is a particular type of a dye. Okay, so it changes color when a solution is added to it. Okay, so we are going to read about litmus as an indicator. Activity 2.1, let us explore. Collect sample of lemon juice, soap solution, amla juice, turmeric water, vinegar, baking soda solution, lime water, tap water, washing powder solution, sugar solution and salt solution. So what you have to do, you have to collect sample of all these solution. कौन से lemon juice, soap solution, amla, turmeric water and baking soda, vinegar, lime water, tap water, इन सब के solution आपको collect करने हैं. Take a strip of blue litmus paper and cut it into small piece. आपने क्या लेना है, blue litmus paper लेना है और उसको एक small छोटे छोटे pieces में काटना है. Spread these pieces on a clean and dry white tile. और इसको एक white tile के ऊपर आपने जो ये आपने जो pieces हैं इनको एक white tile के ऊपर आपने इनको रखना है. Using a dropper, put one drop of each of sample one by one of these litmus paper pieces as shown. तो आपने जो ये सैंपल्स लिए हैं ना, लेमन जूस, सोप सोल्यूशन, इनको आपने जो ब्लू लिटमस पेपर है उसके ऊपर एक एक ड्रॉप सबकी जो है आपने डालनी है. ठीक है. Do you observe any change in the color of blue litmus pieces? So आपने यहाँ पर क्या चेंज देखा, आपको वो बताना है. क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर किस तरह का चेंज आया. Record your observation in table 2.1. Repeat the same activity with pieces of red litmus paper. तो दो कलर के लिटमस पेपर हमने यहाँ यूज करने हैं, एक ब्लू करना है और एक हमें करना है रेड. ठीक है. तो जो हमने सैंपल्स लिए हैं पहले हमें उनको ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना है और उसके बाद हमें रेड के साथ उसको टेस्ट करना है और उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन लिखनी है. एक्टिविटी जो 2.1 टेबल है उसमें ऑब्जर्व कर. ठीक है. कलर चेंजेस, कलर चेंज इन रेड लिटमस पेपर एंड कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर. ठीक है. देयर इज अ कलर चेंज, एक कलर चेंज हुआ है. अब वो क्यों हुआ है ये हमें जानना है कि लिटमस पेपर जो है वो उसका कलर चेंज क्यों हुआ. हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर. लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर करेंगे. डू नॉट कन्फ्यूज लाइम वाटर विद वर्ड लाइम विच इज अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन. ये लाइम वाटर जो है ना ये लेमन वाला वाटर नहीं है. ठीक है. लाइम वाटर हियर मीन्स सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना. लाइम जो है ना उसको हम यहाँ पर चूने को लेना है. हमने क्या करना है इसको. यू कैन प्रिपेयर दिस बाय एडिंग वाटर टू इट. कैल्शियम ऑक्साइड को जब जो चूना होता है उसको अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं और लीविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, उसके बाद उसको हमें छेड़ना नहीं है, वैसे ही रखना है. से एन आर फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर एंड यूज इट एज लाइम वाटर. ठीक है. तो यहाँ मैंने पिक्चर भी डाली है लाइम वाटर की. उसमें आपने पानी डाल के उसे जो है थोड़े टाइम के लिए रखना है और फिर वो उसके बाद आपने जो लिक्विड जो है वो दूसरे में चेंज करके उस दूसरे कंटेनर में आपने लिक्विड जो है वो फिल्टर कर सकते हो. आप उसको यूज़ कर सकते हो एज अ लाइम वाटर. तो इस तरह से हमने लाइम वाटर बनाना है. लाइम वाटर इज नॉट रिलेटेड टू लेमन. ठीक है. नाउ टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. ठीक है. यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो आपने जो सैंपल्स लिए थे उनका हमें लिखना है. यहाँ पे नेम ऑफ सैंपल, कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल एंड कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल. तो दोनों पे हमें टेस्ट करना है. लेमन जूस को हमें दोनों पे टेस्ट करना है. ठीक है. वेदर इट इज ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी और रेड के साथ भी. अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें कैसे पता लगेगा कलर चेंज हुआ. और कलर चेंज हुआ तो यहाँ पर क्यों हुआ, रीज़न क्या है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है. देखो लेमन जूस दिया है.
ठीक है। लेमन जूस जो है ना, ये होता है एसिडिक नेचर में। क्या होता है? एसिडिक, मतलब एक एसिड है। ठीक है। जब कोई चीज़ एसिडिक होती है नेचर में, तो हम जब उसको ब्लू में डालेंगे ना, तो वो ब्लू जो है वो कलर, ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसका कलर जो है वो चेंज होकर रेड हो जाएगा। ठीक है। कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर। अब रेड लिटमस पेपर में ऐसे में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ठीक है। ठीक है। तो हमने सबसे पहला क्या यूज किया? लेमन जूस। लेमन जूस जो है वो एसिडिक है, नेचर में एसिड है। तो जब भी किसी एसिड को आप लिटमस पेपर के साथ ट्रीट करोगे, ब्लू कलर जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा और रेड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, सोप सोल्यूशन। अब सोप सोल्यूशन क्या है? सोप सोल्यूशन है बेस। ये है बेसिक नेचर में, ये है बेस। ठीक है। जब भी कभी हम बेस को ब्लू के साथ, ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं, तो उसमें आता है नो चेंज। ठीक है। इसमें क्या आएगा? नो चेंज। और अगर हम रेड के साथ डालेंगे, रेड विल चेंज टू ब्लू। ठीक है। बेसिक में जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर पे ड्रॉप्स डालेंगे सोप सोल्यूशन के, तो कोई चेंज नहीं होगा, बट रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आंवला जूस। नाउ आंवला जूस क्या है? आंवला जूस इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है। एसिडिक है। अब एसिडिक होगा नेचर में तो सेम रहेगा, ब्लू जो है वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, और जो रेड है उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है टर्मरिन वाटर। अब इसमें भी ये एसिडिक है। ठीक है। एसिडिक में फिर वही होगा, ब्लू जो है वो चेंज हो जाएगा रेड में, और रेड जो है वो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, रेड रेड ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा विनेगर। विनेगर अगेन इज एसिड। ठीक है। तो विनेगर में क्या होगा? विनेगर में फिर वही होगा, ब्लू चेंज होगा रेड में, और रेड जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नाउ वी हैव बेकिंग सोडा सोल्यूशन। बेकिंग सोडा सोल्यूशन इज अ बेस। ये क्या है? बेस। बेस कैसे होगा? बेस में आपको मैंने बताया था, ब्लू में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, और रेड वाला जो है वो चेंज होके ब्लू में आ जाए। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम वाटर। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है? लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है? एक बेस है। ठीक है। तो बेस में क्या होगा? ब्लू में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, और रेड में क्या हो जाएगा? रेड विल चेंज टू ब्लू। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टैप वाटर। आपको पता है टैप वाटर तो डायरेक्टली हम ले रहे हैं टैप से। ठीक है। तो ये क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होगा? न्यूट्रल मतलब ना ही ये एसिडिक है ना ही ये बेस है, तो न्यूट्रल में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमारा ब्लू लिटमस पेपर में नो चेंज, और रेड में भी नो चेंज, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन क्या है? ये एक बेस है। ठीक है। बेसिक है नेचर में, जो बेसिक होते हैं उसमें क्या होता है? ब्लू में तो नो चेंज होता है, और रेड जो है वो चेंजेस टू ब्लू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन इज न्यूट्रल। ठीक है। टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन जो है ये न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल में हमारा कोई चेंज होता ही नहीं, ना ब्लू में चेंज होता है ना रेड में होता है। देन वी हैव सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन भी जो है वो क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है। न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर एज वेल एज इन रेड लिटमस पेपर। नाउ नेक्स्ट इज एनी अदर। एनी अदर में आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी एक सैंपल लेके उसको टेस्ट कर सकते हो विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें क्या है? लेमन जूस। यहाँ पे देखो एग्जांपल दोबारा बता रही हूँ, एसिडिक है, तो एसिडिक में ब्लू लिटमस पेपर रेड चेंज होता है, और रेड जो है वो चेंज नहीं होता। इन केस अगर बेस है, बेस में ब्लू लिटमस पेपर चेंज नहीं होता, रेड जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल। न्यूट्रल में दोनों में कोई चेंज नहीं आता। ओके। तो अगर आप कोई और भी लोगे यहाँ पर, सपोज मैंने कोई न्यूट्रल चीज़ ली है, तो अगर वो न्यूट्रल है तो वो दोनों में नो चेंज आएगा। ठीक है।
Now let us analyze table 2.1 and sort the samples into 3 groups. Group A with the sample that turn blue litmus paper red. अब जो पीछे हमने जो एक्टिविटी की है ना, उसके बेसिस पे हमें यहाँ पर ग्रुप ए में वो सैंपल्स डालने हैं जो ब्लू से रेड में चेंज हुए, और बी में वो डालने हैं जो सैंपल्स जो रेड से ब्लू में चेंज हुए। ग्रुप सी में वो सैंपल्स आएंगे जो न्यूट्रल हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे डालेंगे अब हम देखो। ग्रुप ए में लेमन जूस, आंवला जूस, टर्मरिक वाटर एंड विनेगर, ये सारे सैंपल्स हैं ग्रुप ए में जो ब्लू लिटमस से रेड में हो गए थे। ग्रुप बी में सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन जो है वो रेड से ब्लू में हो गए। देन न्यूट्रल, टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन। तो इस तरीके से आपको ये वाला टेबल कंप्लीट करना है। Now I am curious to know what are these red and blue litmus paper stripes made of. अब ये जो ब्लू और रेड लिटमस पेपर जो हमने यूज़ करे हैं, इनकी जो स्ट्रिप्स यूज़ करी हैं, ये किससे बनती हैं? एक्चुअली ये बनती हैं लिचन्स से। दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। अब लिचन्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। वाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप्स ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम? तो ये कलर क्यों चेंज करती हैं? ब्लू जो है वो रेड हो जाती है, रेड जो है वो ब्लू हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसका भी एक रीज़न है, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज वी आर यूजिंग आइदर एसिडिक सब्सटेंसेज और बेसिक सब्सटेंसेज, इस वजह से ये अपना कलर जो है वो चेंज कर देती हैं। और बेसिकली इसमें कोई एक तरह के डाई भी होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने पिक्चर भी डाली है। लिटमस टेस्ट जो आपको मैंने अभी समझाया था, एसिडिक सोल्यूशन, ये बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन होगा तो ब्लू लिटमस जो है वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, और जो बेसिक में अगर आप होगा तो रेड जो है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, let us find out. Litmus is a natural substance obtained from lichens. It is available both as solution and in form of paper strips known as litmus paper. The litmus paper is available in two colors, blue and red. आपने देखा है यहाँ पे blue और red में ही available होता है। ये lichens के extract से जो है litmus paper को बनाया जाता है, और ये दो तरह के form में available है, solution में भी और paper strips में भी। Substance that turn blue litmus पेपर टू रेड, जिससे ब्लू रेड में होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, while those that turn red litmus paper to blue are basic in nature. Since litmus shows different color in acidic and basic solution, it is also called acid base indicator. ठीक है, सब्सटेंस जो ब्लू से रेड में चेंज होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और रेड से जो ब्लू में चेंज होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, और ये जो लिटमस है वो डिफरेंट कलर्स हमें बताता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के, तो इसी वजह से हम इसे एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। इंडिकेटर यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा है, कलर चेंज बता रहा है। सम अदर सब्सटेंस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक can be also used as indicator. Synthetic indicators are made in laboratories and you will learn about them in higher grades. ठीक है, कुछ और नेचुरल और सिंथेटिक जो सब्सटेंस है उनको भी हम एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, holistic lens, lichens are formed by the association of two living organism as fungus and algae. तो algae और फंगस के मिलने से, ठीक है, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म के मिलने से लिचन्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, सी द पिक्चर ऑफ लिचन्स। दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। ये ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पर बहुत अबंडेंट रेनफॉल होती है, और जहाँ पे रेनफॉल जो है क्लीन एयर होती है, और रेनफॉल तो जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और एयर क्लीन होती है वहीं पे जो है हमें ये लिचन्स नज़र आते हैं। डू यू फाइंड लिचन्स ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड? Now let us classify the substance sorted in group A, B and C in table 2.2. The substance in group A such as lemon juice, amla juice, tamarind water and vinegar turn blue litmus paper red, implying these substances are acidic in nature. ये आपको मैंने समझा दिया कि ये वाले substance जो group A में हमने लिखे थे वो blue से red में होते हैं, क्यों? क्योंकि ये acidic है nature में. The substance in group B such as soap solution, baking soda solution, lime water and washing powder solution turned
द रेड लिटमस टू ब्लू एंड दी सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर। तो बी में जो ग्रुप बी में हमने लिखे थे सॉल्यूशंस, वो रेड से ब्लू में चेंज होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। The substances in group C such as tap water, sugar solution and salt solution did not change the color. अब इन्होंने change नहीं किया था. Can you predict why? Yes, because they are neutral. They are neither basic nor they are acidic. These substances are said to be neutral क्योंकि इन्होंने change नहीं किया था कोई भी color, because they are neither acidic nor basic. ना तो ये acidic है ना ही ये basic. Activity 2.2, let us relate and explore. Are all the substances in group A of table 2.2 edible? Have you ever tasted these edible substances? Can you recall their taste? क्या जो हमने ग्रुप ए में लिखे थे, जैसे लेमन जूस लिखा था, टर्मरिन वाटर लिखा था, क्या ये सब एडिबल है? एडिबल मतलब क्या ये खा सकते हैं? क्या आपने इनको कभी टेस्ट किया है, या आप इनका टेस्ट आपने अगर किया है तो क्या आप इनको रिकॉल कर सकते हो टेस्ट को? यस, अगर आपने इनको कभी टेस्ट किया है, लेमन जूस हम कभी पी लेते हैं, तो यू विल फाइंड दीज सब्सटेंस आर सोर, ये खट्टे होते हैं। लेमन जूस, टर्मरिन जो है इमली का पानी हो गया। दस वी कैन से दैट सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर टू टेंड टू कंटेन एसिड एंड आर एसिडिक इन नेचर। तो जो भी खट्टी चीज़ें होती है ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ तरह का एसिड ज़रूर होता है। यहाँ पर यही बताया गया कि जो खट्टे होते हैं टेस्ट में थोड़े से, उनमें वो एसिडिक होते हैं नेचर में, एंड they contain some kind of acid. Cautious, do not taste anything until asked to do so. Do not taste any unknown substance. तो आपने कुछ टेस्ट नहीं करना है, आपको टेस्ट करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है, अनलेस यू हैव बीन आस्क्ड टू डू सो। अगर जब तक आपको आपके कोई एल्डर्स या आपके कोई टीचर आपसे कुछ नहीं कहती है टेस्ट करना, आपने नहीं टेस्ट करना, ठीक है। सम कॉमन एडिबल सब्सटेंस एंड द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन देम आर गिवन। अब यहाँ कुछ हमें, आप देखो यहाँ पर कुछ हमें कॉमन सब्सटेंस, एडिबल सब्सटेंस दिए, एडिबल मतलब खाने वाले सब्सटेंस दिए हैं, और उनके अंदर जो एसिड होता है ना, वो भी बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखो हमें ऑरेंज दिया है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, लेमन सिट्रिक एसिड, एब्सॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। देन यहाँ पर ये मैंगो दिया हुआ है, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। देन ये टमाटो दिया है, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। इसके अलावा थोड़े से मैंने भी यहाँ पर इकट्ठे करे हैं आपके लिए। देखिए, एप्पल मलिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, ग्रेप टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड, ऑरेंज एस्कॉर्बिक एसिड, टी टेनिक एसिड, देन एंट एंड बी फॉर्मिक एसिड, स्टमक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन सब में कुछ ना कुछ तरह के एसिड। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंस। ये अभी मैंने आपको पीछे भी बताया है कि लेमन, कर्ड, टर्मरिन और विनेगर में कौन से एसिड होते हैं। देखिए, लेमन में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, टर्मरिन में है टार्ट्रिक एसिड, विनेगर में है एसिटिक एसिड। Now let us take one of the substance, baking soda solution from group B. Rub the baking soda solution between your fingers. What do you observe? अब आपने क्या करना है, आपने ग्रुप बी में से कोई एक सब्सटेंस लेना है। सपोज यहाँ पर उन्होंने बोल दिया बेकिंग सोडा सोल्यूशन लो। आपको पता है कि कोविड जब आया था उस टाइम पे भी हमने बेकिंग सोडा सोल्यूशन बहुत यूज़ किया है टू वॉश दी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। उस टाइम पर बहुत यूज़ किया है, ठीक है। आज भी सबके घर में बेकिंग सोडा सोल्यूशन इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा सोल्यूशन को अगर आप हैंड्स पे अपने रब करोगे और ज़रा सा आप पानी मिक्स करोगे तो आपको लगेगा कि वो सोपी और स्लिपरी है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें स्लिपरी होती है ना टच करने में, या सोपी जिसका फील आपको लगे कि ये सोपी है, वो होते हैं बेस, ठीक है। It feels soapy or slippery. Basic substances are generally slippery to touch. Also, bases generally taste bitter, but everything that tastes bitter may not be a base. For example, bitter gourd Karela possesses a bitter taste, but it is not basic in nature. तो वो यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये हमें एसिड और बेस का उन्होंने एक नेचर बता दिया कि एसिड जो है ना, ऐसे वाले सब्सटेंस होते हैं जो थोड़े से खट्टे होते हैं, और बेसिस वो कह रहे हैं जो थोड़े से सोपी और स्लिपरी होते हैं टच करने में, उनको हम बेसिस में लाते हैं। और थोड़ा सा उनका टेस्ट बिटर भी होता है, थोड़ा हल्का सा कड़वा होता है, पर ऐसा नहीं है कि सारे ही जो जिनका टेस्ट कड़वा है वो सारे ही बेस हों।
ठीक है, जैसे कि बिटर गॉड का एग्जांपल दिया, करेला, करेला जो है वो टेस्ट में बिटर होता है, वो कड़वा होता है, पर वो एक बेसिक नहीं है, या वो बेस नहीं है। Now I can check the nature of floor cleaning liquid using an indicator. If litmus is not available, are there any natural substance that can be used as acid base indicator? अगर litmus available नहीं है, litmus paper नहीं मिल रहा आपको, तो क्या ऐसा भी कोई substance, natural substance है जो acid base indicator में use किया जा सकता है? Yes, और भी substances है. So we will read about those substances also. अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रेड रोज एज एन इंडिकेटर। ठीक है, रेड रोज भी जो है वो इंडिकेटर में यूज किया जाता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मेनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग, ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर यूजिंग दीज फ्लावर्स। एक्टिविटी 2.3, लेट अस प्रिपेयर, collect some fallen petal of red rose available in the surrounding and you are advised not to pluck it. You may pick petals which are fallen on the ground. तो आपने क्या करना है, कुछ रेड रोजेस की पेटल्स जो कि ग्राउंड पे गिरी है उनको उठाकर उठाना है। ठीक है, तोड़ना नहीं है। टेक अ फिस्टफुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोज एंड वॉश देम विथ वाटर। आपने एक पूरी मुट्ठी भर के इतनी पेटल्स आपके पास होनी चाहिए रेड रोज की, और उसको अच्छे से पानी से धोना है। क्रश द पेटल यूजिंग अ मोटर एंड पेसल। आपके पास जो कूटने वाला होता है ना, इसमें इलायची वगैरह कूटते हैं, उसमें आपने क्या करना है, उसको क्रश करना है उनकी पेटल्स। प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर, और उसके बाद उसको एक ग्लास टम्बलर में रखना है। पोर सम हॉट वाटर, उसमें आपने क्या करना है, हॉट वाटर डालना है। टू इंश्योर दैट द क्रश फ्लावर पेटल्स आर कम्प्लीटली इमर्स्ड। तो आपने ये देखना है कि जो आप पानी डालोगे ना, हॉट वाटर, तो वो इतना डालो कि वो जो आपने पेटल्स डाली है रेड रोज की, वो पूरी तरह से उसमें भीग जाए। क्वेश्चन, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ अडल्ट। या आपको अडल्ट के साथ ही करनी है स्टेप्स, कोई भी चीज़ आपने अकेले नहीं करना। कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लिड, आपने उस ग्लास टम्बलर को जो है वो कवर करना है, ठीक है, लिड के साथ। देन वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स टिल वाटर बिकम्स कलर्ड एंड फिल्टर। उसके बाद आपने वेट करना है 5 to 10 मिनट्स, देखना है जब तक वाटर कलर नहीं चेंज कर लेता, और उसके बाद आपने उसे फिल्टर करना है। द फिल्टरेट लिक्विड आफ्टर फिल्टरेशन इज रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एज द एसिड बेस इंडिकेटर। अब जो आपके पास जो लिक्विड आया है, ठीक है, फिल्टर करने के बाद उसको हम क्या बोलेंगे कि ये एसिड बेस इंडिकेटर है। अब इसे आप यूज कर सकते हो। अब एक्टिविटी 2.4, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर ये बता दूँ, ये देखो, रोज इंडिकेटर जो है वो चाइना रोज इंडिकेटर एसिडिक होगा तो रेड हो जाएगा, और अगर वो बेसिक होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये कलर आपने याद रखने हैं जब हम रेड रोज इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। अगर एसिडिक के लिए करोगे, एसिडिक कोई सब्सटेंस होगा तो वो रेड में चेंज होगा, और अगर वो बेसिक होगा तो वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, Activity 2.4, let us find out. Place 10 to 20 drops of prepared red rose extract in two small transparent bottle or test tubes. Make them A and B. आपने क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, उसमें आपने ये ड्रॉप्स जो आपने रेड रोज एक्सट्रैक्ट बनाया है वो डालनी है आपने। ठीक है, और दोनों को टेस्ट ट्यूब को नाम देना है A और B. Add 20 to 30 drops of lemon juice in the test tube A and 20 to 30 drops of soap solution in test tube B with the help of dropper. देखो, A में क्या किया हमने, A में हमने लेमन जूस के ड्रॉप्स डाल दिए, और B में हमने सोप सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है, तो आपको पता है लेमन जूस क्या होता है, लेमन जूस एक एसिड है, और सोप सोल्यूशन क्या है, बेस है। क्यों लेमन जूस एसिड है, क्योंकि वो सोर है टेस्ट में, और सोप सोल्यूशन स्लिपरी टू टच होता है, इसलिए वो बेस है। Observe and record any color changes in extract in table 2.3. अब आपको मैंने कलर चेंज बता ही दिया कि अगर एसिडिक चीज़ जलेगी तो वो रेड हो जाएगा, और अगर बेसिक कोई चीज़ है जो बेस है वो डलेगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। Repeat the same with other samples used in activity 2.1 and record your observation in table 2.3. तो आपने कुछ एक आधा सैंपल और लेकर उसमें 2.1 से जो हमने स्टार्टिंग में जो टेबल कंप्लीट किया था उसी एक्टिविटी से सैंपल्स लेकर आपने इसमें टेस्ट करने हैं और 2.3 में लिखने हैं। Testing the nature of samples with red rose extract. Name of sample, the color of red rose extract after adding the sample and nature of the substance. ठीक है, चलिए यहाँ पे है लेमन जूस। लेमन जूस जो है वो क्या है, आपको मालूम है ना, लेमन जूस क्या है, एसिडिक है नेचर में। ठीक है, ये है एसिड,
तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका कलर क्या चेंज होगा, रेड हो जाएगा। और वैसे ये इसका नेचर क्या है, इट इज़ एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन आपको मालूम है क्या है, इट इज़ बेस। बेस है ना, क्योंकि ये स्लिपरी टू टच है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। इसका कलर चेंज क्या होगा, ग्रीन, और इट इज़ बेसिक। देन वी हैव आंवला जूस। आंवला जूस आपको पता है खट्टा होता है, तो इट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो ये क्या हो जाएगा, कलर क्या चेंज होगा, रेड, और यहाँ पर एसिडिक। ठीक है, नाउ एक और सैंपल आपने यहाँ से लेना है। सपोज मैंने यहाँ पे टैप वाटर ले लिया। ठीक है, तो टैप वाटर में इट इज़ न्यूट्रल, आपको मालूम है ना, न्यूट्रल। सॉल्ट वाटर, शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, टैप वाटर हो गया, ये सब न्यूट्रल होते हैं। तो अगर हम न्यूट्रल लेंगे तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, कलर का कोई चेंज नहीं आएगा, एंड इट इज़ न्यूट्रल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Discuss your observation with your classmate. Are the samples that change the color of flower extract to a shade of red the same as that change the color of blue litmus paper to red? Yes. Are the sample, कह रहे हैं कि क्या जो samples जिनका कलर रेड में जो चेंज जिनका रेड में शेड आया है रेड रोज इंडिकेटर से, क्या ये वही सेम है जो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हुए थे? यस। आर द सैंपल दैट चेंज कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू शेड ऑफ ग्रीन आर दोज दैट चेंज द कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू? यस। आर द सैंपल्स दैट डू नॉट चेंज द कलर, ऐसे भी सैंपल्स हैं जो चेंज करा ही नहीं था कलर, क्या वो यहाँ पर भी सेम है, चेंज नहीं कर रहे हैं कलर? From the above activity, we can conclude that red rose extract can also be used to test the nature of substance. Hence, it is another example of acid-base indicator. तो ये एक another example है किसका, acid-base indicator का. We can conclude that the red rose extract seems to give red color in an acidic solution and green color in basic solution. ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जब आप रेड रोज एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर से जब भी आप टेस्ट करोगे एसिडिक और बेसिक को, एसिडिक रेड हो जाएगा और बेसिक जो है वो जो है ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज इन टेबल 2.3? अब 2.3 में हमने यहाँ पर नेचर ऑफ सब्सटेंस फिल कर दिए। We are sure that you will be excited about the above result. You may repeat the process of preparing the extract, testing substance with some vegetable, fruits or flowers such as beetroot, purple cabbage, turmeric, Indian blackberry jamun and red hibiscus gudhal flower. They can also act as acid base indicator. अभी तो हमने किससे बनाया था, ये रेड रोज से बनाया था, बट आप अगर चाहो तो आप कुछ और वेजिटेबल्स ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो, फ्लावर्स ले सकते हो जैसे कि बीटरूट, देन पर्पल कैबेज ले सकते हो, टर्मरिक हल्दी ले सकते हो, इंडियन ब्लैकबेरी जामुन ले सकते हो, रेड हिबिस्कस, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। फैसिनेटिंग फैक्ट, हाइड्रोनिजिया इज अ plant that grows in cooler climate in Himalayan region and the northeastern states. तो हाइड्रेंजिया जो है एक ऐसा प्लांट है जो एक ठंडे रीजन में ग्रो होता है, स्पेशली हिमालय रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. इट गिव्स फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉइल. तो सॉइल के अकॉर्डिंग ही वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर देता है. देखो यहाँ पिक्चर बनी हुई है, ब्लू भी दिया हुआ है और पिंक भी दिया हुआ है. एसिडिक सॉइल प्रोड्यूसेस ब्लू कलर्ड फ्लावर. अगर वो एसिड सॉइल जो है वो एसिडिक है नेचर में, तो वहाँ पे ब्लू कलर फ्लावर जो है वो ग्रो होगा. वेयर एज इन बेसिक सॉइल, अगर वो सॉइल बेसिक है नेचर में, तो वो फ्लावर पिंक या रेड होगा. कैन गार्डनर्स ऑल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉइल? तो गार्डनर्स क्या इसको चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं कलर को अकॉर्डिंग एडजस्ट करके एसिडिक या बेसिक नेचर में? यस, दे कैन चेंज ऑल्सो. टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. अब हमने सबसे पहले पढ़ा लिटमस, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा रेड रोज. नाउ वी आर रीडिंग अबाउट टर्मरिक. टर्मरिक क्या होती है, हल्दी होती है. आपको पता है इजीली अवेलेबल है हल्दी. तो टर्मरिक को हम इंडिकेटर में कैसे यूज करें? वी हैव यूज्ड blue and red litmus paper strips in activity 2.1. Can you also make paper strips with some other natural indicator? Find out by performing the following activity.
Activity 2.5, let us prepare. Take a spoonful of turmeric, haldi, in a petri dish or container and add a little water to make a paste. You may also grind a piece of fresh turmeric. आपने हल्दी लेनी है किसी भी डिश में, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसका एक पेस्ट बनाना है. ठीक है, आप फ्रेश हल्दी भी ग्राइंड करके बना सकते हैं. Carefully dip a piece of filter paper in the turmeric paste until it goes yellow color. आपने एक फिल्टर पेपर लेकर उस पेस्ट में उसको डिप करना है. ठीक है, टेक इट आउट. डिप करने से क्या होगा, उस पेपर पे सारा कलर आ जाएगा हल्दी का. और टेक इट आउट, उसके बाद आपने उसको निकाल कर ड्राई करना है. कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स. येलो पेपर को थिन थिन स्ट्रिप्स में जो है वो कट करना है, पतली पतली स्ट्रिप्स में, विच आर यूज एज टर्मरिक पेपर. ठीक है, तो अब इसे हम यूज करेंगे एज अ टर्मरिक पेपर. परफॉर्म दिस स्टेप अंडर सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट. आपने कोई भी एक्टिविटी खुद से नहीं करनी है, सारी एक्टिविटीज सुपरविजन, अडल्ट के सुपरविजन के अंदर ही करनी है. Now, using a dropper, put a drop of each samples used in activity 2.1 one by one on separate pieces of turmeric paper. अब आपने क्या करना है, जो आपने वहाँ पर 2.1 में जो हमने सब्सटेंस लिए थे उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर सब्सटेंस लेने हैं. और सैम्पल, नेम ऑफ सैम्पल इज गिवन ओवर हेयर. यहाँ पर हमें सिर्फ कलर बताना है कि क्या कलर जो है वो चेंज होता है या नहीं होता. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, जब हम कोई भी सोल्यूशन ऐसा लेंगे जो एसिडिक हो, जैसे हमने लेमन जूस लिया, यहाँ पे लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है, आंवला जूस जो है वो एसिडिक है नेचर, खट्टा है ना, सौर है. और सोप सोल्यूशन इज बेस. ठीक है, जब हम कोई सोल्यूशन ऐसा लेंगे जो एसिडिक होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, टर्मरिक पेपर पे जब हम लेमन जूस को डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज. और अगर हम बेस लेते हैं, तो बेस जो है वो इट विल चेंज टू रेड कलर. किस में चेंज होगा, रेड कलर में. ठीक है, तो लेमन जूस एसिडिक है तो नो चेंज. सोप सोल्यूशन बेस है तो वो चेंज हो जाएगा रेड में. आंवला जूस अगेन इज एसिडिक तो नो चेंज. ठीक है, अब इसमें अगर आप चाहो तो एक और ले सकते हो, टैप वाटर ले सकते हो यहाँ पर. ठीक है, आप सोप शुगर सोल्यूशन ले सकते हो, सॉल्ट सोल्यूशन ले सकते हो, बट आप वो यहाँ लोगे तो इट विल बी न्यूट्रल. सपोज अगर यहाँ पे हम टैप वाटर ले लेते हैं ऐसे. ठीक है, टैप वाटर अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो उसमें भी क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज. ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा. दिस इज टैप वाटर. ठीक है, what did you observe? Do all samples change the color of the turmeric paper? नहीं, चेंज नहीं होगा. ग्रुप द सैम्पल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑन टर्मरिक पेपर. अब आपने क्या करना है, ग्रुप करना है उन सैम्पल्स को. ठीक है, हमने कौन सा लिया था पीछे, लेमन जूस लिया था. ठीक है, आंवला जूस लिया था, टैप वाटर लिया था, इनके कलर चेंज नहीं हुए. Compare them with the samples in group A, group B and group C in table 2.2. Can turmeric paper be used as the indicator for acidic substance? Discuss with your classmate. Based on the observation, we can conclude that turmeric paper can be used to test basic substance. However, it cannot be used for acidic and neutral. क्यों यूज़ नहीं कर सकते एसिडिक और न्यूट्रल में, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा कलर में एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो. बट व्हेन वी यूज़ इट विद अ बेसिक सब्सटेंस, अगर हम बेसिक सब्सटेंस के साथ उसको यूज़ करते हैं उस टाइम पर क्या होता है, वो कलर चेंज कर देता है. ठीक है, आई गॉट अ करी स्ट्रेन ऑन माई white shirt and applying soap change the color. wow, now I know the reason. क्यों कलर चेंज हो गया, अगर आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते शर्ट पे गिर गया और उसका निशान हल्दी का लग गया, तो जब आप उस पर सोप लगाओगे, क्योंकि सोप जो है वो बेसिक है तो इसलिए उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, नाउ यू नो द रीज़न कि क्यों ऐसा होता है. फैसिनेटिंग फैक्ट्स. वाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस? टर्मरिक मतलब हल्दी को गोल्डन स्पाइस क्यों कहते हैं? टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ जिंजर फैमिली विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज.
ठीक है। टर्मरिक जो है एक जिंजर फैमिली को बिलोंग करती है, क्यों? क्योंकि एक तो लुक इसकी जिंजर जैसी है, ठीक है। हल्दी की जो लुक होती है वो जिंजर जैसी होती है, अगर आपने कभी कच्ची हल्दी देखी हो तो। और ये कहाँ ग्रो होती है? इंडिया और अदर कंट्रीज। अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, इट इज बीन रिसर्च फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड्स टू द फूड। तो एक ऐसा स्पाइस है जो हर घर में यूज़ किया जाता है, हल्दी को हर घर में यूज़ किया जाता है, और इसका जो इसके इतने बेनिफिट्स हैं। टेस्ट को छोड़, अगर आप टेस्ट की बात करो तो टेस्ट, कलर तो प्रोवाइड करता है ये फूड में, और हल्का जो भी है टेस्ट भी देता है। In the Vedic system of medicine, turmeric is considered to have numerous health benefits. आयुर्वेदिक में जो है वो टर्मरिक जो है उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। घर की कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो, जैसे हम दवाइयाँ बनाते हैं घर में कुछ जो हम खा सकते हैं, तो उसमें भी हल्दी जो है वो डलती है। दैट इज़ वाई टर्मरिक इज नोन एज द गोल्डन स्पाइस। Ashwin created a greeting card to pay gratitude to his teacher on the day of Guru Purnima. He applied turmeric paste on white paper and dried it. अश्विन ने एक कार्ड बनाया अपनी टीचर को देने के लिए गुरु पूर्णिमा के लिए, और उसने उसके ऊपर जो है पूरी उसके ऊपर हल्दी का जो पेस्ट है वो लगा दिया, एंड ड्राइड इट, और लगाने के बाद उसने सूखने के लिए रख दिया। He wrote his wishes in the teacher's mother tongue Odia language on the dried paper using one of the solution tested in table 2.4। तो उसने क्या किया, उसने टीचर की जो मदर लैंग्वेज थी ओडिया, उसमें जो है एक मैसेज जो है, विश जो है वो टीचर के लिए लिखी, ठीक है। और एक सोल्यूशन का यूज़ किया जो टेबल 2.4 में हमने जो चीज़ें टेस्ट करी थी ना, उन्हीं में से कुछ इसने जो है वो यूज़ किया। विच सोल्यूशन कैन यू थिंक इज यूज टू राइट द मैसेज? हिज टीचर अपलोडेड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कंसेप्ट। तो अब आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा कौन सा सोल्यूशन यूज़ किया होगा जिससे कि यहाँ पर जो आप कलर देखो, यहाँ क्या कलर आया है? यहाँ पे रेड कलर आया है। और हमने जो टेबल 2.4 पढ़ा था, टेबल 2.4 में हमने क्या पढ़ा था कि टर्मरिक जो पेपर हम यूज़ करते हैं, या टर्मरिक स्ट्रिप्स जो हमने यूज़ करी थी, वो सिर्फ बेसिक पे ही जो है वो काम करती है। बेसिक मतलब बेस जो होता है उसी पे वो काम करती है, और बाकी किसी पे वो काम नहीं करती, ठीक है। तो इट मीन्स उसने कोई ऐसा सोल्यूशन यूज़ किया है, जैसे कि सोप सोल्यूशन है, कोई भी हो सकता है जो बेसिक होगा नेचर में, जिससे कि ये रेड कलर जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। Are there any substance whose odors can change on adding acidic or basic substance? क्या ऐसे कोई यहाँ पर सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी जो है स्मेल जो है, ओडोर मतलब होता है स्मेल, चेंज हो सकती है एसिडिक या बेसिक, अगर हम कुछ ऐड कर दें एसिड या बेस सब्सटेंस तो चेंज हो जाए। देयर आर सम सब्सटेंस whose odors change in an acidic or basic medium, these are called olfactory indicator। तो ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनकी स्मेल को चेंज किया जा सकता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालकर उनको, और इनको हम कहते हैं olfactory indicators। they are called as olfactory indicators। Activity 2.6, let us investigate। Take some finely chopped onions in a container along with some strips of clean कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। आपने क्या करना है, कुछ अनियन प्याज लेने हैं और उनको चॉप करना है, ठीक है। और उनको एक एंड अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ, एक कॉटन का क्लॉथ लेना है या फिल्टर पेपर लेना है। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। टेक 2 of the cotton cloth and filter paper strips from the container and check their odor। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो चॉप्ड अनियन आपने जो लिए है, इसको आपने एक स्ट्रिप में डाल, कॉटन के कपड़े में डालकर इसको आपने रखना है, ठीक है। ओवरनाइट तक उसको क्लोज करके रखना है, ठीक है, कंटेनर में, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट डे उसको खोलेंगे तो आप उसकी स्मेल चेक करेंगे। कीप देम ऑन अ क्लीन सर्फेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक वाटर ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ बेकिंग पाउडर ऑन अदर। अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स। अब आप क्या करोगे, आपने क्या करना है कि क्लीन, आपने
कुछ जो आपने फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप्स ली हैं, उस पे एक स्ट्रिप पे आपने टर्मरिक वाटर डालना है, इमली वाला पानी, और एक पे बेकिंग सोडा डालना है और दोनों को स्प्रेड होने देना है। और फिर उसकी आपको जो है वो स्मेल चेक करनी है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ओडोर ऑफ अनियन स्ट्रिप्स बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टर्मरिक वाटर एंड बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन देम? तो आपने जब आपने पहले तो उसको अनियन के साथ डाल दिया था, रख दिया था, ठीक है, तो उसमें अनियन की स्मेल आ गई थी, बट बाद में जब आपने टर्मरिक वाटर और एक पे बेकिंग सोडा डाला तो उसमें क्या चेंज आया? नोट योर ऑब्जर्वेशन, सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ओडोर विद एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने इसमें क्या चेंज महसूस किया, आपको ये बताना है कि अगर हम कोई एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक है, एक एसिडिक लिया हमने, जैसे एसिडिक या टर्मरिक वाटर ले लिया, और बेकिंग सोडा इज बेसिक, तो उसमें स्मेल में क्या चेंज हुआ? Know a scientist. Acharya Prafulla Chandra Roy, P.C. Ray, is known as the father of modern Indian chemistry. इनको आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी रे भी बोला जाता है नहीं, और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। इन्होंने डॉक्टरेट कर रखी है किसमें? केमिस्ट्री में। और कहाँ से? यूके से, और उसके बाद ये वहाँ से पढ़कर वापस इंडिया आए थे। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने साइंटिफिक साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च होती हैं उसमें काफ़ी एडवांस लेवल पे कंट्रीब्यूट किया। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, अ कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन से रिलेटेड, तो इन्होंने इंडिया की फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी बहुत हेल्प करी इस्टेब्लिश करने में। उन्होंने इस्टेब्लिश की अ कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 1901 में। ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशन थ्रू हिज। ये ऐसे पर्सन थे जो जिनको इंडियन कल्चर के बारे में बहुत पता था, हमारी जो सभ्यता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता था, और बहुत ज़्यादा नॉलेज थी हमारे इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में। Through his writings on the history of chemistry in India, he highlighted the achievement and expertise of ancient Indian scientists to modern world. तो इन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू अपने जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी उसमें हाईलाइट किया जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनकी अचीवमेंट्स को आज के मॉडर्न वर्ल्ड। Ray, a social reformer, also advocated the use of mother tongue as a medium of instruction in educational institution. उन्होंने और क्या किया? वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। रिफॉर्मर कौन होते हैं? जो कोई चेंज लाते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो उन्होंने एक तरह का जो है ये बोला था कि मदर टंग को यूज़ करना चाहिए जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली इन स्कूल्स, ठीक है, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम होता है वो मदर टंग ही होना चाहिए। Now, what happens when acidic substance mix with basic substance? अब यहाँ पर हमने क्या करना है? अभी तो हम अलग अलग ट्रीट कर रहे थे ना दोनों को, अब हमने एसिड और बेस को अगर हम मिला देते हैं तो होता क्या? Let us investigate by performing the following activity. Activity 2.7, let us experiment. Take 1 drop of lemon juice in a test tube and add around 20 drops of water to it. ऑब्जर्व द कलर। आपने क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें कुछ लेमन जूस के ड्रॉप डालने हैं और उसके बाद 20 ड्रॉप्स वाटर के डालने, फिर उसे ऑब्जर्व करना है। एड अ ड्रॉप ऑफ लिटमस पेपर सोल्यूशन टू इट। उसके बाद आपने इसको लिटमस पेपर किस पे डालना है? ब्लू पे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर? आपने क्या कोई कलर चेंज देखा? स्लोली add drop of litmus water paper to this test tube with the help of dropper and swirl it well. अब आपने इसे swirl मतलब इसे घुमाना है। What do you observe? Is there any change in color of the solution? A stage comes when the color of solution changes from red to blue. ठीक है, जब आपने लेमन जूस डाला, लेमन जूस डाला और आपने उसमें ब्लू डाल दिया, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर आपने उसको रख दिया, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब जो है वो सोल्यूशन का कलर जो है वो रेड से ब्लू हो जाएगा। अगेन एड ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द सोल्यूशन, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाई देयर इज चेंज इन कलर? तो आपने किया क्या? यहाँ पर देखो, लेमन जूस डाला पहले एक टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद 20 ड्रॉप्स वाटर के डाल दिए, ठीक है, कलर चेंज आपने, उसके बाद आपने उसी को ब्लू लिटमस पे डाला, ठीक है, ब्लू लिटमस पे डाला तो वहाँ पर चेंज आ गया कलर में, ठीक है। तो एक
आपने देखा कि वहाँ उसके बाद आपने उसी में क्या डालना है, लाइम वाटर डालना है। ठीक है, जब आप लाइम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, लेमन लेमन जूस जो है वो तो एसिड है। ठीक है, तो एसिडिक में जब आपको मालूम है जब हम एसिडिक में डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर जो है जब आप यूज़ करोगे तो लेमन जूस जो है वो क्या है, वो एसिडिक एसिडिक है नेचर में, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में। ठीक है, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। बट उसके बाद जैसे ही आप उसमें जो है वो डालोगे, लाइम वाटर डालोगे, तो कलर वापस किस में चेंज हो जाएगा, लाइम वाटर डालते ही, क्योंकि लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर इज अ लाइम वाटर इज अ बेस। तो लाइम वाटर जैसे ही आप डालोगे तो कलर जो है वो एकदम से ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर आपने चेंज नोटिस करा होगा रेड से ब्लू में। ठीक है, रेड से ब्लू में हुआ पहले, और फिर उसके बाद अगर आप फिर दोबारा से आप देखोगे जब आप लेमन ड्रॉप दोबारा डालोगे तो वो फिर से कलर चेंज करेगा। अब वो चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक एसिड में हम जो है वो बेस डाल रहे हैं। Initially, when a drop of blue litmus solution is added to the lemon juice, the color of solution turns red. ठीक है, तो आपको बता दिया मैंने कि जैसे ही, क्योंकि वो एक एसिड है, जो जैसे ही आप लेमन जूस में डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर लेमन जूस डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। और जैसे ही आपने लाइम जूस डाला, व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब, जैसे ही लाइम वाटर उस पर डलेगा तो कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। दिस शोज दैट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। तो अब ये इससे क्या पता लगता है कि जो सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब में ना वो एसिडिक नहीं रह गया, क्योंकि आपने उसमें बेस डाल डाल के उसको क्या किया, आपने जब उसमें बेस डाल दी तो वो जो है वो एसिडिक खत्म हो गया। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। लाइम वाटर डालने से जो एसिड का इफेक्ट था वो खत्म हो गया। When the solution of an acid is mixed with solution of base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. तो जब भी एक सोल्यूशन में एसिड के साथ को बेस को मिक्स किया जाता है एक अच्छी क्वांटिटी में, सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो जो रिजल्ट होता है ना वो एसिड बनता है ना वो बेस बनता है। और सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रल होते हैं ये, ना तो बेस होते हैं ना ही एसिड होते हैं। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद एवोल्यूशन दैट इज रिलीज ऑफ हीट। तो जब ये एसिड और बेस जो मिलाते हैं हम, इसमें से क्या निकलता है, सॉल्ट तो निकलता ही है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और साथ में कुछ हीट भी निकलती है। There are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralization processes. Let us find out. न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी हैं और हमें जो है वो देखना है कि किस तरह से एसिड का इफेक्ट जो है वो बेस के यूज से न्यूट्रलाइज हो गया। सिचुएशन 1, कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन द ट्री ट्रंक। देखो ट्री ट्रंक पे उसने हाथ रखा हुआ है कीर्ति ने, और वो एक बटरफ्लाई को देख रही है। सडनली अ रेड एंट बिट हर। एक चींटी ने, लाल चींटी ने उसको काट लिया। लिविंग हर स्किन रेड विथ स्टिंकिंग पेन। और उसकी स्किन पूरी रेड हो गई और उसको बहुत पेन हुआ। हर ब्रदर हेल्प्ड हर बाय अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। उसके ब्रदर ने उसकी हेल्प करी, जो इफेक्टेड एरिया था ना वहाँ पर बेकिंग सोडा लगा दिया, क्योंकि देखो एंट बाइट जब करती है ना, जब एंट होती है, छोटी चींटी होती है, वो जब आपको बाइट करती है वो एक एसिड छोड़ जाती है। ठीक है, तो वो एसिडिक हो जाता है जहाँ आपको पेन हो रहा है। अगर वहाँ पे आप मॉइस्ट करके, गीला करके एक बेकिंग सोडा लगा लोगे, बेकिंग सोडा इज बेस, ठीक है, विच रिलीव्ड द पेन। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीजन? व्हेन एन एंट बाइट्स, जब एंट ने बाइट किया, चींटी ने काटा, इट इंजेक्ट्स, अंदर आपके अंदर एक एसिड बन जाता है, एसिड लिक्विड, एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड बन गया जब एक एंट ने बाइट किया into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda which is a base. तो इसका इफेक्ट कैसे खत्म किया? एक एसिड का इफेक्ट तभी खत्म होगा जब उसमें बेस मिक्स होगा। तो एक, अगर आप बेकिंग सोडा जो बेस है उसको हल्का सा गीला कर दो और उसको रब कर दो उस एरिया पे, तो इससे जो है वो एंट बाइट जो है वो ठीक हो जाएगी। What remedies do people use to treat the ant bites in your region? तो आपके
एरिया में या आपके रीजन में अगर किसी को एंट बाइट हो जाती है तो आप क्या यूज़ करते हो, कौन सी रेमेडी यूज़ करते हो। ठीक है, ये तो कीर्ति को एंट ने काटा, वहाँ पे जो है वो एंट बाइट जहाँ भी हुई वहाँ एक एसिड बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया स्किन के अंदर। वहाँ पे हमने मॉइस्ट बेकिंग सोडा रब किया और वो जो है वो न्यूट्रलाइज होके ठीक हो गया। Let's come to the situation 2. On the Farmers Portal, an online platform from the Department of Agriculture, Corporation and Farmers Welfare, a query from the farmer states, my plants are not growing well lately. After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizers, substances added to soil to help plants grow better made the soil acidic. What remedy might be provided to him? अब क्या हुआ, फार्मर्स के एक पोर्टल पे, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे फार्मर्स को हेल्प दी जाती है या उनकी कोई भी क्वेरी हो तो उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो फार्मर्स के एक पोर्टल पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक फार्मर ने एक अपनी क्वेरी डाली। उसने क्या डाला, उसने क्वेश्चन डाला कि मेरे प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, एक डिस्कशन के बाद, डिटेल डिस्कशन की गई। डिस्कशन के बाद ये पता चला कि फार्मर जो है ना वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो जो है कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहा था। ठीक है, सॉइल के लिए यूज़ कर रहा था। सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर होते क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल में यूज़ किए जाते हैं जिससे कि प्लांट्स और अच्छे से ग्रो हो। ठीक है, तो फार्मर जो है वो कुछ ज़्यादा ही फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहा था जिससे कि सॉइल जो है वो अच्छा हो जाए और प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो, जिससे कि सॉइल क्या हुआ, एसिडिक हो गया। ठीक है, उसमें एसिड जो है वो बढ़ गया जिस वजह से प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। वॉट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम, अब इसको हम क्या रेमेडी बता सकते हैं। When the soil is too acidic, the plants do not grow well. ये आपको पता है कि यहाँ तो ऊपर डिस्कस कर ही लिया है कि जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिए तो वो एसिडिक नेचर में हो गया। अब जब वो एसिडिक हो गया तो क्या हुआ कि वो जो प्लांट्स थे वो ग्रो नहीं कर रहे थे। इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम विच इज़ अ बेस। अब इसको हम किससे ट्रीट कर सकते हैं, लाइम से। अब लाइम मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, ठीक है, चूना। ठीक है, तो लाइम से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लाइम विच इज़ अ बेस। अगर हम उससे इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो इसका इफ़ेक्ट है, ये आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका जो इफ़ेक्ट है, जो एसिडिक इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो लाइम कैन बी यूज्ड हियर एज अ बेस। If the soil is basic, organic matter like manure and compost leaves are added to it. अगर soil कोई basic होता, acidic ना होता, ठीक है, तो उसके अंदर मैन्योर, बहुत सारा खाद डाला जाता है, कोई लीव्स होती हैं वो डाली जाती हैं, उसमें ऐड की जाती हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, ये मैन्योर हो गया, खाद हो गई, और जो लीव्स होती है, कंपोस्ट लीव होती हैं, ये सब जो है ये एक तरह का एसिड रिलीज करती हैं जो बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। समटाइम्स द सॉइल में भी न्यूट्रल, अगर सॉइल देखो एसिडिक था तो हम उसे बेसिक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसमें लाइम का यूज़ करेंगे। बट अगर वो कह रहा है सॉइल बेसिक है तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं ताकि कुछ एसिड्स उसमें रिलीज हो और वो बेसिक का जो बेसिक नेचर है सॉइल का वो खत्म हो जाए। Sometimes the soil may be neutral, but the plants growing in it may still show poor health, which can be due to deficiency of nutrients in the soil. तो कई बार soil जो है वो neutral होता है, ठीक है, तो जो plants grow करते हैं उसमें वो अच्छे से grow नहीं कर पाते, जिस वजह से जो है वो soil में जो है वो काफ़ी deficiencies आ जाती हैं क्योंकि उसमें proper nutrients नहीं है। इसी वजह से वो soil जो है वो neutral हो जाता है और plants को grow नहीं कर पाता। Now let's come to situation number 3. Ashwin's friend Gurveer stays near an industrial area. He shared with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. तो अश्विन का फ्रेंड गुरवीर जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास जो है जहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे रहता था। ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन, उसने क्या शेयर किया कि फ़िश की पॉपुलेशन उसके नेबरहुड में जहाँ वो रहता है, नेबरहुड की एक लेक है जहाँ पर फिश है काफ़ी, वहाँ पर जो है वो डिक्लाइन हो रही है, ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द
कॉजेज फॉर दिस। अब इसके लिए क्या कॉज हो सकता है? ठीक है, कई बार होता है कि फैक्ट्री वेस्ट डाला जाता है, या होम वेस्ट भी जो होता है हमारा, हम वो जाके लेक्स में डंप कर देते हैं, जिससे कि वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ होती है दैट गेट्स अफेक्टेड। ठीक है, लेट अस रीड फर्दर। If the factory waste is acidic in nature, what could be the could done to save the fish in lake? अगर वहाँ पे फैक्ट्री का वेस्ट डाला गया, इट मे बी ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज्ड इनटू लेक। अब वो कह रहा है रीजन क्या है कि मे बी वहाँ पे फैक्ट्री वेस्ट डाला जा रहा है, इस वजह से लेक के अंदर जो फिशेज हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। अगर फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक है नेचर में, तो क्या किया जा सकता है फिशेस को बचाने के लिए, फिश को बचाने के लिए? द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। तो हम फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ बेसिक सब्सटेंस जो ऐसे यूज कर सकते हैं, ताकि हम लेक में उनको आसानी से रिलीज कर दें या डाल दें। Okay. Let us wrap up. So now we have come to the end of this lesson. Now, can you explain why the words "Welcome to the wonderful world of science" appeared on Ashwin's and Kirti's paper sheet when the liquid was sprayed on them? तो अब वो क्यों आया था? जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि अश्विन और कीर्ति को एक एक वाइट शीट मिली थी और फिर लिक्विड स्प्रे किया और वो एकदम से लिखा आ गया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है कि एक तो वो जो है वो टर्मरिक सोल्यूशन में, टर्मरिक सोल्यूशन का वो होगा, तो इस वजह से होगा, और उसमें कुछ उन्होंने बेस यूज़ किया होगा, जिस वजह से वो रेड में जो है वो लिखा आ गया। Do you think that one possibility could be using a turmeric solution for spraying liquid and the soap solution for writing on the paper? Yes, this can be the possibility कि एक तो वो turmeric solution था, और turmeric solution जो है for spraying liquid, turmeric solution और soap solution जो है वो use किया गया for writing on the paper. So with this we have come to the end of the lesson. I hope you have understood this lesson, and now I'll come in the next video. I'll post the next video with the question answers, the summary, and I will also upload important points of this lesson in my upcoming videos. So please stay tuned to my channel. Kindly like and subscribe my videos. Thank you so much.